Hi, Heron's formula homework number 2 was a real question paper. You would have realized that there were MCQs and there were short question answers, etc. There were marks written on it. So, this was a test paper, and that's why I'm making this video to explain you every sum because it is different from what we have been doing till now. वीडियो में मैं जो भी सिखाता हूँ उसका डिट्टो होमवर्क मिलता है. इट बिकम्स ईजी. बट दिस वॉज द फर्स्ट पेपर इन दिस लास्ट 1 month where there were a lot of questions which were twisted. Plus, I have this new technology at hand where I can talk to you face to face. So, I hope it helps. So, this video I'm making specially to explain the homework. So, please watch, take your book और वीडियो देखते जाओ, तुम्हारी बुक में कंपेयर करते जाओ, एंड आई विल डिस्कस द एंटायर पेपर. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम MCQs. MCQ number 1. First question. For triangle ABC, what is the semi-perimeter? It's very easy. Sides are 8, 6 and 10. 8 plus 6 plus 10 divided by 2. Answer is 12. Second question. For parallelogram ABCD, AB parallel to CD, BC parallel to DA. Look at this figure. AB is parallel to CD and BC is parallel to DA. One of the sides is given, AB 8 and BC 10. ये रहा AB 8, BC 10, but because it's a parallelogram, 8 के सामने 8, 10 के सामने 10. Therefore, the final question, what is the perimeter of parallelogram? What is perimeter? Perimeter is simply the total of all sides. Triangle हो, स्क्वायर हो, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, हेक्सागन, हेप्टागन, कुछ भी हो, पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स. 8 प्लस 10 प्लस 8 प्लस 10 हो गया आंसर 36. तो फिर यहाँ पे क्या किया है ये? दिस इज फॉर्मूला. पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस के लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं 2h प्लस बी या 2l प्लस बी. But you don't need formulas if you ask me. Perimeter is simply total of all the sides. 8 plus 10 plus 8 plus 10. Question number 3. Perimeter of trapezium 50. ये रहा. Perimeter of trapezium 50 and length of non-parallel sides are equal to 12. ये देखो. This is non-parallel side 1 and 2 and they are 12, 12. The question is, what is the sum of the parallel sides? पैरेलल साइड्स का टोटल कितना? तो ग्रैंड टोटल 50 है, उसमें से 12 12 माइनस कर दो, मतलब 24 माइनस कर दो तो 26 बचेगा. दैट इज द सम ऑफ द टू पैरेलल साइड्स. फोर्थ क्वेश्चन. एरिया ऑफ रोम्बस 54 एंड वन ऑफ द डायगोनल इज 9. एरिया 54, एक डायगोनल 9. You have to use the 8th standard formula of rhombus. Area is equal to half into diagonal 1 into diagonal 2. एरिया की जगह पे 54, हाफ की जगह पे हाफ, डायगोनल 1 ढूंढना है और डायगोनल 2 की जगह पे 9 because here it is given that it is 9. So you can see the final answer is 12. Fifth question. Okay, great. Fifth question. The length of the side of the triangle are in proportion 3:4:5. Again, we have learned in 8th standard. Ratio जब दिया होता है 3, 4, 5, you have to take 3x, 4x, 5x. And perimeter is 144. So 3x plus 4x plus 5x is 144. 12x 144. X की value आई 12. And this value of x you have to put in 3x, 4x and 5x. उससे 3 साइड मिल जाएगी. 3 12 36, 4 12 48, 5 12 60, 36, 48 and 60 are the 3 sides of triangle. Apply Heron's formula. Area is 864. Sixth question.
if the base of isosceles triangle is 10, so look at this figure. Isosceles triangle का मतलब होता है दो साइड सेम और बेस 10. अपार्ट फ्रॉम दैट पेरीमीटर इज 28, ये रहा पेरीमीटर 28. सो 28 में से 10 माइनस कर दो, बचा 18, और 18 के दो इक्वल टुकड़े करो, बचा 9. देयरफॉर द साइड इज 9. Seventh, the length are 8, 11, 13. What is the area? This is a straightforward case of doing Heron's formula. So nothing fancy in it. 8 sum, base 12, altitude 8. थाली पिरसती है, खा लो बस, कुछ नहीं है, it's very easy. Base 12, altitude 8. Area is half base altitude, half 12, 8. 48 is the answer. Ninth, area of equilateral triangle is 2 root 3. Then what is the length of side? Side given, find area. Area given, find side. ये कॉमन चीज़ है, 8th स्टैंडर्ड में सरफेस एरिया वॉल्यूम में सीखा था और एरिया वाले चैप्टर में भी था. सो एरिया 2 root 3. बट व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल? √3/4 साइड स्क्वायर. सो एक तरफ असली एरिया लिखो, ये रहा 2 root 3, दूसरी तरफ एरिया का फॉर्मूला लिखो एंड देन सॉल्व. दिस इज अ स्क्वायर, और स्क्वायर जब सामने जाता है तो रूट बन जाता है, एंड √8 इज 2 root 2. रिटन डायरेक्टली हियर, आंसर इज 2 root 2. कभी भी कोई भी सम ना पता चले तो प्लीज you know you can WhatsApp me freely and I'll explain you again on one-to-one basis. 10 sum, triangle ABC, ये रहा triangle ABC. CD is the altitude, देखो CD altitude. AD 4, ये रहा AD टुकड़ा 4. CD 5, ये रहा standing line CD 5. BD 5. ऑल्सो, अब यहाँ से मेन चीज़ शुरू होती है, दिस इज द मेन हार्ट ऑफ द सम. ऑल्सो द एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल. दैट्स व्हाट वी आर सपोज टू स्टार्ट द सम. एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर. बट व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल? इट इज हाफ बेस ऑल्टीट्यूड. हाफ बेस ऑल्टीट्यूड में बेस 9 है, ये रहा 4, 5, 9, और ऑल्टीट्यूड 5 है, ये रहा 5. हाफ 9, 5 मतलब 45/2. और दूसरी तरफ एरिया ऑफ स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर. फॉर्मूला एक्स तो पता नहीं है, सो राइट एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, स्क्वायर जब सामने जाएगा √45/2. सडनली हेरॉन्स फॉर्मूला छोड़ के यू हैव एंटर्ड नंबर सिस्टम. ये नंबर सिस्टम में सिखाया था हाउ टू सिंप्लीफाई रूट्स. आंसर इज 3√5/2. 11th MCQ. In a square ABCD, the length of each side is 7. Look at this square. All the sides are 7, 7, 7, 7. And the length of diagonal is what is the question? Diagonal पूछा है. तो देखो ये right angle triangle मस्त highlight किया है. And right angle triangle में this is 90 degree, right? Which means the two sides are 7, 7. You have to do Pythagoras. Where the two sides are 7, 7. हाइपोटेनस मिल गया 7√2, और जो हाइपो है वही डायगनल है. द हाइपो ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्वल टू डायगनल. 12th सम, फिगर रेडीमेड है, सिर्फ सिंपल पूछा है व्हाट इज AC. ऑल यू हैव टू ऑब्जर्व इज देयर इज अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC इनसाइड द मेन फिगर, और ABC राइट एंगल ट्राइंगल है, देयरफॉर AC इज द हाइपो. पाइथा करना है, और ये पाइथा बाय हार्ट होना चाहिए. 9, 40, 41 इज अ ट्रिपलेट विच शुड बी बाय हार्ट. क्वेश्चन 2, फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, साइड 6. तो शॉर्टकट यूज किया है, √3/4 साइड स्क्वायर, आंसर आ गया. सेकेंड, फाइंड द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, हाइपो 17, बेस 15. लुक एट दिस फिगर क्लियरली, हाइपो 17, base 15. What is the formula of area of right angle triangle? Half side 1 side 2. Side 1 तो ये रही 15, but side 2 missing है.
और side 2 missing है, therefore you have to do Pythagoras. So this is where Pytha is done. They have found out the side. और जिनकी आंसर शीट है वो एरिया ढूंढना ही भूल गए. दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन इट्स इन फ्रंट ऑफ यू. जो पूछा है वो तो ढूंढा ही नहीं, इमोशन में आके पाइथा कर दिया और बल्ले बल्ले हो गया मेरा सम. नो, सो यू हैव टू डू half side 1 side 2, half into 8 into 15 later on and find the area as 16. Third sum, find the area of triangle whose length of the sides are 36, 48 and 60. Heron's formula, 864 answer. Fourth sum, again ratio. If the length of the three sides are 3, 4, 5 and perimeter is 120. So 3x plus 4x plus 5x is 120. उसमें x की वैल्यू फाइंड करो 10. 10 को तीनों चीज में वापस डाल दो तो तीन साइड मिल गई 30, 40, 50. हेरॉन्स फॉर्मूला जिंदाबाद. आंसर 600. Isosceles triangle, perimeter 30 and congruous side 12. Figure is very important. Figure से बहुत कुछ पता चल जाता है. So always focus on drawing the figure first. Isosceles मतलब दो साइड सेम और दोनों 12 दी हुई है. Perimeter मतलब टोटल ऑफ थ्री साइड 30. तो तीन साइड का टोटल 30 है, उसमें दो 12 है, तो 12 माइनस कर दो, 24 चला गया. तीसरी साइड बची वो है 6. और तीसरी साइड 6 के बाद see what I have done. This was also mistake in this answer sheet, so I had to make one of my own. This is the right angle. This is the triangle 12, 12, नीचे 6. And isosceles में मैंने सिखाया था वीडियो में that when you draw altitude, it touches the midpoint. So these two are same. और पूरा 6 है तो this is 3 and 3, 3, 3. इसमें से एक राइट एंगल ट्राइंगल निकला 12, 3 and S. और उसका पाइथागोरस करो. साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर इज हाइपो. ये रहा, तुमको साइड मिलेगी 3√15. और वो साइड 3√15 लेके यू हैव टू फाइंड आउट दिस एरिया. कैसे? हाफ बेस ऑल्टीट्यूड. ये रहा. सो नाउ आई एम मिनिमाइजिंग अगेन. हाफ बेस 6, ये रहा, ब्लैक कलर में लिखा है बेस 6. And altitude is this 3√15. 3√15. Calculate करके final answer 9√15. Sixth, एक फ्लाईओवर है 135, 105 ट्राइंगल. तो सबसे पहले फ्लाईओवर के ट्राइंगल का एरिया निकालो. एरिया आया 300√34. देन they have given the value of √34 as 5.83. Put that value and find a more precise area. The more precise answer is 1749 मीटर स्क्वायर. 1 मीटर स्क्वायर का कितना खर्चा है एडवर्टाइजमेंट करने का? 4000. एक का 4000 तो 1749 का कितना? इट्स क्रॉस मल्टीप्लाई. यू गेट 6996000 रुपीस. बट ये जो 4000 का खर्चा है वो पूरे साल का है. बट एक कंपनी ने पूरे साल के लिए नहीं लिया है भाड़े पे, फ्लाईओवर को 2 महीने के लिए भाड़े पे लिया है. सो दिस अमाउंट विच यू सी हियर इज फॉर 12 मंथ्स. तो 2 महीने का कितना? अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई. 12 मंथ्स का इतना तो 2 महीने का कितना? फाइनल आंसर इज 1166,000 रुपीस. 11 लाख बहुत महंगा है ना. एनीवेज, 7th, find area of triangle with sides 5, 7, 10. ये रहा हेरॉन्स फॉर्मूला. 5, 7, 10, 5, 7, 10. Area is 2√66. But more important question was find the altitude on side whose length is 10. मतलब ये देखो फिगर, जो साइड 10 है उसके ऊपर जो altitude है उसकी लेंथ ढूंढो. And how to do that? We already have the area. Area is half base altitude, so you have to use area half base altitude formula. Put area की जगह 2√66, half की जगह half, base 10 है, altitude मिल जाएगा 2√66/5. अब ये अच्छा ऐसे better so that my face does not block the question.
Next question is 8th question. Find the area of quadrilateral AB, BC, CD, AD और AC. सब कुछ तो दिया हुआ है. It's a double herons. A quadrilateral containing two triangles. एक ट्राइंगल का herons, दूसरे का herons करो. जिंदाबाद. Answer. 9th question. Find the area of ABCD, AB, BC, CD, DA और B90. ये जो B90 है, look at this person. पहले नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया, बाद में पता चला क्वेश्चन पढ़ के फिगर बना के कि B तो 90 है. दिस इज अ वेरी गुड हैबिट. चेंज योर डायग्राम, देयर इज नथिंग रॉन्ग. B 90 है, B को 90 दिखाओ. और अगर B 90 है तो यू कैन डू पाइथागोरस. And by doing Pythagoras of 8 and 15, you will find the diagonal AC as 17. तो diagonal 17 मिल गया. Now look at this figure. You can do 2 times herons. 12, 17, 13 का अलग heron करो, 8, 15, 17 का अलग heron करो. So this is the herons of 8, 17, 15. But राइट एंगल ट्राइंगल का शॉर्टकट है, तो अगर यूज़ किया होता तो इट वुड हैव बीन रियली ग्रेट. सो हाफ साइड 1 साइड 2 इज अ बिग शॉर्टकट. बहुत मेहनत बच सकती थी यहाँ पे. दैट्स व्हाई आई हैड टू राइट डाउन इन रेड कलर. हाफ साइड 1 साइड 2 कैन ऑल्सो बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ herons. इट इज बेटर. 10 sum. Perimeter of quadrilateral 92 and perimeter of ABD is 90. और साथ में दिया है ए बी, बी सी, सी डी, डी ए. लुक एट दिस फिगर. ए बी 40, बी सी 15, सी डी 28, डी ए 9. यहाँ पे ना शायद एक इंफॉर्मेशन मिसिंग है. इट्स नॉट प्रिंटेड कि ए 90 डिग्री है. एंगल ए इज 90. सो सी 940 और ये डी बी का पाइथागोरस किया है. 9 और 40 का पाइथा करोगे तो हाइपो 41 आएगा. सो डी बी इज 41 एंड द मिनट यू गेट 41 यू हैव टू अगेन डू हेरॉन्स फॉर्मूला 2 times. बट हियर ऑल्सो 940 41 राइट एंगल था. इंस्टेड ऑफ डूइंग हेरॉन्स यू कुड हैव इजीली डन हाफ साइड 1 साइड 2. राइट एंगल ट्राइंगल की दो साइड हाइपो छोड़ दो, दो साइड हाफ साइड 1 साइड 2, you can quickly find the formula. And after finding 2 triangles don't forget to add them. 180 और 126 करके हुर्रे नहीं चलेगा. You have to add and find the answer 306. 11th was a easy sum. Length of diagonal 40 and 24. तो rhombus का एरिया कितना? rhombus का फॉर्मूला है half d1 d2. So area of rhombus is half d1 d2. Apply it. You find area 480. 12th sum. Length of side of parallelogram are 13 and 10 and length of one diagonal is 9. So see, you have to draw a parallelogram. ये रहा 13 13 10 10 आमने सामने और कोई भी एक diagonal 9, which means you have 2 triangles which are same. 13 10 9 13 10 9. तो एक बार हेरॉन्स करो 13 10 9 का एंड फाइंड द एरिया. एरिया इज 12 रूट 14 एंड देन डबल इट. देखो यहाँ पे लिखा भी है एज इट इज द सेम सम डबल द आंसर और सेम ट्राइंगल. सो 12 रूट 14 का डबल, फाइनल आंसर इज 24 रूट 14. थैंक यू सो मच. आई होप इट हेल्प्ड. प्लीज गिव फीडबैक इफ यू लाइक्ड इट. और कभी भी कुछ ज़रूरत पड़े तो डोंट हेजिटेट टू गिव मी अ कॉल और व्हाट्सएप मी. थैंक यू. हैप्पी स्टडिंग.